Hello students, today we are going to continue a second chapter that is the number system ਔਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ BCD ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ BCD ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ very large number as well as a very small number. ठीक है, without an increase in the number of bits and also for represent a numbers that have both integer and a fractional part. ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो जो अपने को फॉर्मेट होएगा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नोटेशंस। और जो भी अपने को नंबर होएगा वो मेरे को इंटीजर पार्ट भी हो सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, आप वन बाय वन डिस्कस करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस आ साइंटिफिक नोटेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ that is between 1 to 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਪਾਵਰ ਆਫ 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਪਾਵਰ ਆਫ 10। ਸੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਔਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅ ਨੰਬਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ 1 to 0 ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ 10। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਅ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫॉर ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1092, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1.0492 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ देयर आर 4 डिफरेंट डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, then that's why ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, that is 492 1 2 3 4। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਬਾਈਨਰੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 10492। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ऑफ एक्सप्रैसिंग अ नंबर, दैट मीन्स ए नंबर है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ 1 to 10। ਔਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਡਿਜਿਟ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ 10 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ 10। 10 ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ। ਸੋ 19 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ
तो इत्थे मेरे को आ गया 4 आ गया। सो दिस इज़ नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशंस। क्लीयर। हुण अपने को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशंस किहड़ियां है, तुसीं शायद सुनिया भी होएगा। पहली अपने को है 2.99 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 8, ठीक है दोस्त। दीज ऑल साइंटिफिक नोटेशन तुसीं देख के कह सकते हो, क्योंकि एक नंबर है अपने को मल्टीप्लाई होया बेस दे नाल, ओहदी कोई है पावर है, और मेरे को नंबर विच की है फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो दैन यू ईजीली फाइंड आउट दिस इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जो आप स्पीड ऑफ लाइट ਨੂੰ अगर आप गल करते हैं तो उत्थे आप देखते हैं कि कितनी स्पीड है, उत्थे आप 2.99 इंटू 10 दी पावर 8, दैट मीनस की होएगा कि इस तो बाद डेसीमल तो बाद की होंगे 8 डिजिट्स होंगे, दैट मीनस 2 ए हो गए तो पिछे 6 जीरो लग जाएगी। इन्ने डिजिट अपने को होंगे अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को एक नॉर्मल नंबर से रिप्रजेंट करना है। सो दिस इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट साइंटिफिक नोटेशन। नैक्सट साइंटिफिक नोटेशन है दैट इज़ अ एवोगैड्रो नंबर। तुसीं ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ दैट इज़ 6.02 इंटू 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23, दैट मीनस ये नंबर होर ज़्यादा ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ दैट मीनस कि 23 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ अपने को बिट्स और डिजिट्स होंगे डेसिमल तो पार, दैट इज 23। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है 1.60 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9 कूलम। दिस इज अ चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन का जो चार्ज होंदा है उन्होंने आप जो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम, तो दैन उत्थे आप लिखते हैं ਉਹਦੀ वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म ਵਿੱਚ 1.60 मल्टीप्लाई 10 ਦੀ पावर -19। जो पावर मेरे को -19 होएगी दैट मीन नंबर इज़ वेरी स्मॉल, ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर मेरे को एक्सपोनेंट या पावर पॉजिटिव होएगी इट मीनस कि नंबर वैरी लार्ज, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर इन्हों आप ओपन करते हैं किस तरीके नंबर आप रिप्रजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म के। सिमिलरली दिस इज़ द एज ऑफ द यूनिवर्स दैट इज़ 4.35 इंटू 10 दी पावर 17 सेकेंड्स, ठीक है। सो इनू याद करने की लोड़ नहीं है। सो मैं तुहानूं इत्थे समझा रहा कि साइंटिफिक नोटेशन किद्दां दी हुंदी देखण दे विच। सो जो भी अपने को नंबर इस फॉर्म दे विच आएगा दैट इज़ नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। दीज आर यूज टू रिप्रजेंट अ वेरी लार्ज नंबर एज वेल एज अ वेरी स्मॉल नंबर। सो इस नंबर ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਬਾय 1 ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ मान लो मेरे को एग्जाम्पल ले रहे हैं एवोगैड्रो नंबर दी दैट इज 6.02 इंटू 10 दी पावर 23। ये मेरे को दो मेन पार्ट होंगे ਜਿਹੜੇ कि आप आगे डिस्कस करांगे। सो पहला पार्ट होएगा अपने को मैंटिसा, दिस इज नोन एज अ मैंटिसा पार्ट होएगा, ठीक है। जो भी आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रजेंटेशन करनी सानू मैंटिसा पार्ट चाहिए है, एज वेल एज आ नैक्सट मेरे को की होएगा एक्सपोनेंट। सो जी पावर होएगी उन्होंने की कहांगे आप एक्सपोनेंट कहांगे। सो जो भी आप किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रजेंट करना है तो उत्थे आपां नूं मैंटिसा पार्ट भी चाहिए है एज वेल एज आ एक्सपोनेंट पार्ट भी चाहिए। सो दिस इज नोन एज आ मैंटिसा पार्ट एंड दिस इज नोन एज आ एक्सपोनेंट। क्लीयर। सो मान लो हम मेरे को ये वाला नंबर है, ठीक है, दैट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन। अगर इन्हों नॉर्मल नंबर में बरतना होएगा ਇਹਦਾ मतलब की होएगा डेसीमल तो बाद 23 डिजिट्स होने चाहिए। दो तो अपने को है ही है, ठीक है। बाकी कितने लग जाएंगे, जीरो लग जाएंगे। कितने लगेंगे अपने को 21 जीरो लग जाएंगे लाइक दिस 602। अगर तुम काउंट करोगे डेसीमल तो बाद ये मेरे को टोटल कितनी आएंगे 23 होंगे। सो इसका मतलब ये है जो आप प्रॉपर सॉल्व करांगे तो मतलब ये होएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। अगर तुम इन्हों बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अगर बाइनरी डेसीमल कन्वर्ट करते हैं यू विल सी इट विल कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ जीरोज एंड 1। और जिन्ने नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा होंगे इन पर्टिकुलर नंबर उन्नी मैमरी की ज़्यादा ऑक्यूपाई करने। बट जो आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रजेंटेशन करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬਿਟਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਾਰਜ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਨੰबर ਵਿਦਆਊਟ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ द नंबर ऑफ बिट्स। सो इन दिस वे तुम देख सकते हो कि किस तरीके अगर अपने को साइंटिफिक नोटेशंस है अगर उन्होंने आप सॉल्व करते हैं तो अपने को इस तरीके का नंबर बन के आएगा। दैट मीन डेसीमल तो बाद कितने डिजिट्स होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। क्लीयर। अगर बाइनरी कन्वर्ट करूँगे ये बहुत सही होर लार्ज हो जाएगा, बट वो होगा नंबर ऑफ जीरो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और स्टोर करने में जी मैमरी है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। सिमिलरली एक होर एग्जाम्पल ले लीए, ये अपने को पॉजिटिव सीगा पावर और मेरे को की होगी नैगेटिव होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये होंदा है कि डेसीमल तो पहला किन्ने अपने को जिहड़े है
ਉਹ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 19 ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 19 ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮॉल ਨੰਬਰ। अगर मेरे को कोई भी साइंटिफिक नोटेशंस है, अगर मेरे को ਉਹਦੀ एक्सपोनेंट नेगेटिव आती है इट मीनस ये नंबर बहुत स्मॉल है। सिमिलरली अगर मेरे को एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो ਇਹਦਾ मतलब कि नंबर मेरे को वैरी लार्ज है। सो ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਬਾਈਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ -19 ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਟੂ ਪਾਰਟ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। तो टोटल दो पार्ट होंगे प्लस आ साइन। साइन का मतलब कि नंबर में भी पॉजिटिव हो सकता है और नैगेटिव हो सकता है। आप प्रीवियस सैशन में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन बिट का की मतलब है, उतों अपन क्लीयर हो जाएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नंबर मेरे को नैगेटिव है। सो किहड़ा पार्ट होएगा, एक मंटीसा पार्ट होएगा इज द पार्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डैट रिप्रजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर का पार्ट होएगा जिहड़ा कि मैग्नीट्यूड को की करेगा रिप्रजेंट करेगा। Similarly ਜਿਹੜੀ exponent है it is also a part of floating point number that represents the number of places the decimal point or binary point is to be moved। so exponent तो clear होएगा कि एक particular decimal point है ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ binary point है ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। अगर मेरे को लगे लग रही है आफ्टर लग रही है नंबर तो नंबर मेरे को की होएगा पॉजिटिव होएगा, एक्सपोनेंट सॉरी मेरे को की होएगी पॉजिटिव होएगी। सो क्लियर। सो देयर आर टू पार्ट्स इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इन्हों पर रियल नंबर भी कहते हैं। एक मंटीसा होएगा, एक अपने को एक्सपोनेंट होएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट तो क्लियर होएगा कि चाहे डेसिमल नंबर है पॉइंट है या अपने को बाइनरी पॉइंट है तो किन्ने नंबर अपने को जो प्लेसिस है वो की करेगा रिप्रजेंट करेगा या शिफ्ट होएगा, जो भी अपने को बाइनरी और डेसिमल पॉइंट होएगा। एंड प्लस अपने को साइन होएगा जो कि इंडिकेट करेगा नंबर मेरे को पॉजिटिव है या मेरे को नैगेटिव है। सो बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ਨੂੰ अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो देयर आर थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट इज अ सिंगल प्रिसीजन, इट इज़ ऑफ अ 32 बिट्स, then double precision it is of a 64 bits, then extended precision it is a 80 bits। ठीक है, सो ये अपने को अलग अलग अपने को फॉर्म्स है। ठीक है, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दियाँ। डैट मीन अगर सिंगल प्रिसीजन यूज़ करांगे तो उन्होंने रिप्रजेंट करने लिए अपन 32 बिट्स चाहिए है। अगर नंबर होर भी ज़्यादा बहुत बड़ा है तो उत्थे आप डबल प्रिसीजन यूज़ करांगे। अगर उस तो भी ज़्यादा बड़ा है तो उत्थे आप एक्सटेंडेड प्रिसीजन जिहड़ा है वो यूज़ करांगे। बट इन दिस टॉपिक आप डिस्कस करांगे ओनली आ सिंगल प्रिसीजन दैट इज़ ऑफ अ 32 बिट। ये याद रखना है कि जिहड़ा अपने को सिंगल प्रिसीजन होएगा दिस इज़ अ 32 बिट होएगा। ठीक है, डबल मेरे को 64 उसका दुगना हो जाएगा। सो आप डिस्कस करांगे सिंगल प्रिसीजन। सो मान लो कि मेरे को डेसिमल नंबर है -3.154 इंटू 10 दी पावर 5। दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन जो भी अपने को फॉर्म आएगी। इन दिस केस साइन इज नेगेटिव। क्लीयर। सो अपने को साइन की हो गया नेगेटिव हो गया। सो जो अपने को मंटीसा होएगा वो किहड़ा होएगा 3.15। दिस इज अ मंटीसा एंड एक्सपोनेंट किहड़ा होएगा जी अपने को बेस की पावर होएगी दैट इज नोन एज अ एक्सपोनेंट इन केस ऑफ डेसिमल नंबर। सिमिलरली अगर मेरे को बाइनरी नंबर है इन दिस केस साइन मेरे को की पॉजिटिव है। सो मेरे को 11.1010 मंटीसा पार्ट होएगा एंड जी एक्सपोनेंट होएगी वो की होएगी मेरे को 3 होएगी। एक्सपोनेंट मतलब की होंदा है पावर। ठीक है, इस तरीके नाल आप रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी डेसिमल नंबर में देखना पड़ेगा मंटीसा पार्ट किहड़ा है और एक्सपोनेंट पार्ट किहड़ा है। और नंबर में भी पॉजिटिव हो सकता है और नंबर में भी नैगेटिव हो सकता है। सिमिलरली जी साड़ी एक्सपोनेंट है वो भी पॉजिटिव हो सकती है एज वेल एज वो भी नैगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो नंबर इज़ वेरी स्मॉल, अगर मेरे को पॉजिटिव है एक्सपोनेंट तो नंबर इज़ वेरी लार्ज होएगा। सो सिंगल प्रिसीजन का मतलब ये है कि IEEE जिहड़ा है 754 इन्हें एक स्टैंडर्ड फिक्स करता जिन्हें भी डिफरेंट मैन्युफैक्चर ऑफ अ कंप्यूटर्स है। कहते कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा अगर तुम रिप्रजेंट करना है तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही रिप्रजेंट करोगे। ठीक है, इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सो IEEE का मतलब होंदा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स।
ठीक है, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ IEEE। सो इन्हें की करता एक स्पेसिफिकेशन बनाती है, ठीक है, अबाउट अ सिंगल पोजीशन। अगर गल करिए कि अगर कोई भी मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उन्होंने आप किस तरीके ना सो सिंगल पोजीशन हो चाहे डबल पोजीशन है चाहे एक्सटेंडेड है, ये सारिया स्पैसीफिकेशन IEEE वालों प्रोवाइड की गई हैं। और जिन्हें भी कंप्यूटर आर्कीटैक्चर सॉरी कंप्यूटर सिस्टम है बनाते मैनुफैक्चर वो इस स्टैंडर्ड को की करते हैं फॉलो करते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग ही नंबर सिस्टम जो है फ्लोटिंग पॉइंट की आप रिप्रजेंट करते हैं। सो सिंगल पोजीशन का जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है की कह रहा है इट हैज़ अ साइन बिट, एक साइन बिट होएगी एज द लैफ्ट मोस्ट बिट। अपन पता है कि साइन बिट हमेशा लैफ्ट मोस्ट बिट होएगी। दूजा की होएगा एक्सपोनेंट होएगा, उन्होंने आप ई ना डिनोट करांगे। इनकलूड द नैक्सट 8 बिट्स, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट होएगा अपने को की होएगा वो 8 बिट का होएगा। एंड सिमिलरली जो मिंटीशा और फ्रैक्शनल पार्ट है वो अपने को 23 बिट का होएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड जी साइन बिट होएगी वो 1 बिट की होएगी, ठीक है। बिट ही आ गया दैट मीनस 1 ही होएगी। जो एक्सपोनेंट पार्ट होएगा वो 8 बिट का होएगा। एंड सिमिलरली जो मिंटीशा या फ्रैक्शनल पार्ट है वो अपने को 23 बिट का की होएगा अपने को फ्रैक्शनल वाला मिंटीशा पास होएगा। अगर आप देखिए ग्राफिकली तो दिस इज अ फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है सो अपने को पहला की होगी साइन बिट, ठीक है। वैल्यू 1 हो सकती है 0, इसलिए 1 बिट का होएगा। सिमिलरली जो एक्सपोनेंट है मैं बायोस्ड एक्सपोनेंट कहूँगा, देखा कि की मतलब है ये मेरे को 8 बिट का होएगा। डैट मीनस मेरे को मैक्सिमम 8 बिट्स आ सकती है, इस तो ज़्यादा नहीं। सिमिलरली नैक्सट पार्ट मेरे को की है मिंटीसा होएगा और फ्रैक्शन पार्ट आप कह सकते हैं ये किन्ने का होएगा मेरे को 23 बिट्स का होएगा। डैट मीनस 0 तो लैके 22 तक अपने को मिंटीसा पार्ट होएगा, 23 तो लैके 31 तक अपने को एक्सपोनेंट होएगा और 32 में अपने को की होएगा साइन बिट होएगी। सो टोटल कितना हो गया मेरे को 32 बिट्स हो गया। अगर तुम कंबाइन करोगे तो मेरे को ये 32 बिट्स का होएगा। सो सिंगल प्रिसीशन ऑलवेज कीप इन माइंड इज ऑफ अ 32 बिट्स, ठीक है। 23 फॉर मिंटीसा, 8 फॉर एक्सपोनेंट एंड 1 फॉर अ साइन बिट्स। क्लीयर। सो इस मैथड ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करके ही ਜਿਹੜਾ सिंगल पोजीशन है ਉਹਨੂੰ ਕੀ कर सकते हैं ਆਪਾਂ फ्लोटिंग पॉइंट ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर होर ज़्यादा बड़ा है, अगर मान लो कि मेरे को 23 बिट सारियां फुल अप हो जाती है और मेरे को डाटा हजे कंप्लीट शो नहीं हो रहा है, रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो दैन उत्थे आप सिंगल या डबल पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਗਲ पोजीशन रिप्रेजेंट करता है उस तो दुगने नंबर ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ रिप्रेजेंट कर सकता। ਉਹ नंबर में भी वेरी लार्ज हो सकता और वेरी स्मॉल हो सकता। सो जो भी आप रिप्रेजेंट करना है दैन अपने को नंबर ਨੂੰ नॉर्मलाइज करना पएगा। ये फार्मूला है, ठीक है। -1 देन पावर इज s। अगर s की वैल्यू 0 है दैट मीनस वो पॉजिटिव होएगा, अगर वैल्यू 1 है तो नंबर की होएगा नेगेटिव होएगा। देन मल्टीप्लाई 1 पॉइंट मिंटीसा पार्ट होएगा, ये स्टैंडर्ड याद रखना हमेशा इतने 1 देन डेसिमल तो बाद मिंटीसा पार्ट होएगा। देन मल्टीप्लाई b इज अ बेस, ठीक है। बाइनरी तो आप 2 लवांगे, डेसिमल तो उत्थे आप लवांगे 10 लवांगे। देन वो पावर की होएगी e प्लस बायोस्ड अपने को होएगी 127 होएगा। e मेरे को की होएगा एक्सपोनेंट होएगा। सो अगर मेरे को कोई नंबर है अगर तुम उन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सिंगल पोजीशन दैन उन्होंने पहला नॉर्मलाइज करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ दिस वे। आप हम एग्जाम्पल ना डिस्कस करांगे। सो ये 127 कितना आया है अगर तुहानू याद होए जो भी आप 8421 कोड यूज़ किया उत्थे आप ये मैथड यूज़ करते हैं डैट इज 2 दी पावर 0 2 दी पावर 1 2 दी पावर 2 2 दी पावर 3 4 5 6 एंड 7। सो कितने बिट्स मेरे को है 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन पता है कि जो एक्सपोनेंट है वो 8 बिट का होंगे। अगर तुम ये रेंज बनेगी तो अपने को नंबर की बनेगा ये 1 बन जाएगा 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो टोटल अपने को किन्ने ये नंबर्स आएंगे दैट इज 0 लैके 127 तक। और 0 लैके 120 तक नोट करूँगे तो कितना आएगा मेरे को 128 आएगा। सो इस करके इतने लिखे आप 127। सो की हो जाएगा 0 to 127। सो यदि रेंज की होएगी -1 to 8 to 127 अगर सिंगल पोजीशन है, ठीक है। अगर अपने को ज़्यादा वैल्यू इनक्रीज हो जाती है दैन उत्थे आप डबल पोजीशन यूज़ करांगे। सो दिस इज़ अ रेंज। अगर अपने को एक्सपोनेंट है बायस्ड है अपने को ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी यदि वैल्यू हो सकती है, इस तो ज़्यादा वैल्यू या इस तो घट वैल्यू नहीं होगी। क्लीयर। इसलिए आप इतने लिखा होया है 127। तुहानू ये याद कर नो नीड टू आइडेंटिफाई हाउ नॉर्मलाइज इज डन, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर जो भी फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है उत्थे अपने को इस फॉर्मेट में की उन्होंने रिप्रेजेंट करांगे। क्लीयर। सो 27 के 127 किस तरीके बनया वो तो मैं दस देगा किस तरीके। b इज़ द बेस, m इज़ द मिंटीसा, s इज़ द साइन। सो जो भी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट होएगा इस फॉर्मेट में की होएगा रिप्रेजेंट होएगा।
ठीक है। सो जो भी आप ई डैश जो कैलकुलेट करना है वो किदा करांगे ई प्लस बायस। ई की होएगा जो मेरे को एक्सपोनेंट की वैल्यू होएगी, ठीक है। 2 है 3 है 4 है 5 है, दैन ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫॉर अ सिंगल प्रोसीजन। मैं लिख ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ फॉर सिंगल प्रोसीजन, ਉਹ 127 ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। दैट इज नोन है बायस्ड, ठीक है, बायस एक्सपोनेंट। सो जो भी ਆਪਾਂ बायस एक्सपोनेंट कैलकुलेट करनी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक्सपोनेंट प्लस बायस ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। क्लीयर। फॉर एग्जांपल ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1460 ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 101101101000। दैन पॉइंट बाइनरी पॉइंट 125 का जो बाइनरी पॉइंट होगा 001 होएगा। जो आप कन्वर्जनस कीतियां सीगियां उत्थे आपां करके देख चुके हैं, तुसीं इहनूं दुबारा भी कर सकते हो कि डेसिमल नूं किस तरीके नाल बाइनरी विच कन्वर्ट, ठीक है। सो दैट मीनस पहला आपां की करांगे, पहला स्टैप जो भी डेसिमल नंबर होगा उहनूं आपां बाइनरी विच कन्वर्ट करांगे, दैन ऑटोमैटिक बेस की हो जाएगा उहदा 2 हो जाएगा। उस तो बाद इहनूं आपां नॉर्मलाइज करांगे। नॉर्मलाइज का मतलब है कि जिहड़ा ये डेसिमल पॉइंट है ये इधर नूं मूव होएगा टूवर्ड द लास्ट तक, ठीक है। दैट मीनस की होएगा ये जो अपने को डेसिमल है इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीनस की होगा नॉर्मलाइज, दैट इज नोन एज अ नॉर्मलाइज फॉर्म जी लाइक दिस, ठीक है, 1 पॉइंट एंड सो ऑन। ये मेरे को की हो जाएगा तीसरा पर। हुण 10 कितना आया है, देखो ध्यान दे नाल जिहड़ा ये डेसिमल पॉइंट है कितनी अगे शिफ्ट होया है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10। सो 10 तो बाद आया है, इसलिए पावर कितनी बन गई मेरे को 10 बन गई। क्लीयर। सो जो भी अगर मान लो मेरे को बाइनरी नंबर है, पहले आप नॉर्मलाइज करांगे, दैट मीनस आप जो बाइनरी पॉइंट है उन्होंने शिफ्ट करांगे और जिन्नी प्लेसिस आप शिफ्ट करते हैं उन्नी 2 की हो जाएगी पावर हो जाएगी। इन दिस एग्जाम्पल आप 10 डिजिट शिफ्ट किए हैं तो वो पावर कितनी होगी मेरे को 10 होगी। नाउ दिस इज द नॉर्मलाइज फॉर्म। क्लीयर। सो पहला नंबर नॉर्मलाइज बाइनरी कन्वर्ट करांगे, फिर आप नॉर्मलाइज करांगे। सो बॉदर नहीं करना कि नॉर्मलाइज की होंगी है, किस तरीके नाल होंदी, नो। in this case in this syllabus in this topic just you have to remember कि normalize इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ floating point ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। now in this case ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीनस पावर, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 10, ਸੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ डेसीमल तो बाद जो होएगा वो की बन जाएगा मेरे को मैंटीसा पार्ट बन जाएगा। सो की बन गया 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1, उत्थे अपन डेसीमल लवाउण दी लोड़ नहीं है। सो कैलकुलेट की करना आप ई डैश, क्योंकि इत्थे आप ई डैश की वैल्यू पानी है, ई की वैल्यू नहीं पानी है, इसलिए मैं इत्थे लिखा है ई बायस्ड कहते हैं। सो अपने को एस नॉट की वैल्यू, सॉरी एस की वैल्यू भी है, मैंतीसा की वैल्यू भी मिल गई है। हुण अपने को एक्सपोनेंट है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी। सो किद्दां करांगे, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला दैट इज e biased exponent bias is equal to e plus 127। so e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 10, so 10 plus 127 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 137। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਡੈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂਤੀਸਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ 0, ਦੈਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, दैन अपनी को मैंटिस है वो वैल्यू ये आ जाएगी। इतने डेसीमल पॉइंट लाने की लोड़ नहीं। देखो ध्यान दे नाल कितने बिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है, इस तो ज़्यादा नहीं आएगा। ये 1 बिट है तो 1 बिट का रहेगा। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस आप कह रहे हैं कि 23 बिट्स है। अगर काउंट करो कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिट्स बनी है, ठीक है। बट फॉर्मेट पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बाकी पीछे कितनी लगा देंगे आप जीरोज लगा देंगे, ठीक है। जिन्ना मैंटीसा पार्ट आप इतने नोट कर लेंगे, बाकी जो बच गया 23 बिट में रिप्रजेंट कर ली, बाकी कितने ला लेंगे आप 0 लगा देंगे। क्लीयर। सो 10 अपने को कितनी लग जाएगी 0 लग जाएगी, वो की बन जाएगा तुहाडा मैंटीसा पॉइंट। ये अपने को बाइनरी पॉइंट नहीं आएगा। सो इन दिस वे जो भी अपने को फ्लोटिंग पॉइंट है उन्होंने आप कंप्यूटर मैमरी में यूजिंग अ सिंगल प्रोसीजन इस तरीके से रिप्रजेंट कर सकते, ठीक है। और जो मर्जी अपने को पावर आए, जो मर्जी अपने को एक्सपोनेंट आए, वो 8 बिट्स ही होंगे, इस तो ज़्यादा बिट्स आप इनक्रीज नहीं होंगी। इसलिए क्या होया है कि किसी भी नंबर में आप रिप्रजेंट कर सकते हो विदाउट इनक्रीजिंग आ बिट्स। सो बिट्स जड़ियाँ है तड़ियाँ इनक्रीज नहीं होंगियां, बट नंबर तड़ा है वो अलग अलग फॉर्म के हो सकता है। लार्ज नंबर भी हो सकता है और स्मॉल नंबर भी आप इन्होंने बिट्स 8 बिट ही यूज़ करके रिप्रजेंट कर सकते हैं।
ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਟੀਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਬਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਟੀਸਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਟੀਸਾ 23 ਬਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਇਸ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ 1 ਬਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 127 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਮੂਵ ਉਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਮੰਟੀਸਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਈ ਡੈਸ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਈ ਪਲੱਸ 127। ਸੋ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Clear? So this is a floating pointer representation using a single precision, ठीक है। Always keep in mind। एक ਆਪਾਂ ਹੋਰ एग्जांपल ਲੈਣੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੈ, ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਏਗੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। अदर नहीं है तो नॉर्मलाइज नंबर नहीं होएगा, तो अपन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली इन दिस के देख लो, ये 0 है तो इमीडिएट बिट मेरे को की होएगी 1 होएगी, अगर इधर 1 है तो इधर मेरे को की होएगा 0 होएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड ये नंबर पहला ही मेरे को मैं इन्हों नॉर्मलाइज फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ठीक है। सो एग्जाम्पल की होगी अपने को ਇਹਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ रिप्रेजेंट करना है, सिंगल प्रोसीशन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो की करांगे, की कह रहा है बायस्ड एक्सपोनेंट 128 विल बी एडिड विद द एक्सपोनेंट, जो भी ये वैल्यू होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। सो रेंज की बन जाएगी 128 टू 127। सो ਇਸੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਸੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ 0 ਟੂ 255। 8 ਬਿਟ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 1 ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 255 ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਣਾਓਗੇ 255, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ 1 ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, 255 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 0.11011 into 2 100 ठीक है। नाउ इन विच पहला साइन बिट कैलकुलेट करांगे। नंबर मेरे को की है पॉजिटिव है तो साइन बिट की वैल्यू की आ गई मेरे को 0 आ गई। नैक्सट मेरे को की है एक्सपोनेंट है, सो एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है 100101। सो इतने लिख लिया 100101। सो इन्हू काउंट करो कितने बनते मेरे को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट ये एक्सपोनेंट है मेरे को कितने बिट का होंगे, 8 बिट का होंगे। सो आप इतने किया पिछे कितनी लगातियाँ, 2 0 लगातियाँ, पिछे लगावे अगे नहीं लगावे, ठीक है। नो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो अपने को क्या 8 बिट का हो गया जी एक्सपोनेंट है। और की कहता 120 ऐड कर दो। सो 128 का बाइनरी नंबर ये होएगा, वो कहता कि उन्होंने ऐड कर दो, की बन गया मेरे को 1 + 0 1। सो ये मेरे को सारा की हो गया वह एडिशन हो गई। सो 1 0 1 0 0 1 0 1, ये मेरे को की बन गया ई डैश बन गया, ठीक है। सो एक्सपोनेंट की होगी मेरे को 1 0 1 0 0 1 0 1, दिस वन। क्लियर। हुण मेरे को साइन बिट भी आ गई है, एक्सपोनेंट भी आ गया है, हुण की रह गया मेरे को मंटीसा पार्ट रह गया, ठीक है। सो मंटीसा पार्ट की होएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਟੀਸਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10111, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ।
ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि 0.1 है ये अपन पता है कि जिन्ने भी नंबर्स होंगे इसे फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। अगर पता ही है कि अपने को नंबर इसे फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ तो दैन ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਲਟੀਸਾ ਪਾਰਟ। ਨਾਓ ਮਲਟੀਸਾ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 23 ਬਿਟ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 और पिछे बाकी उन्हें की लगा देंगे आप 0 लगा देंगे ताकि वो कंप्लीट हो जाए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। सो दिस इज द वे हम तुम इनू आप इस तरीके रिप्रेजेंट एस की वैल्यू कितनी होगी 0। सो एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी 1 0 1 1 दिस 1 एमटीसा की वैल्यू कितनी होगी 1 0 1 1। सो इस नंबर नू फ्लोटिंग पॉइंट नू अगर सिंगल पोजीशन किया है तो इस फॉर्मेट में आएगा। क्लीयर। सो देख सकते हो कि ये आप बिट्स इनक्रीज बिना किए ही किसी भी नंबर को कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ਹੁਣ मैं सेम नंबर लिया हुआ ध्यान देखो सेम नंबर है बट एक डिफरेंस पाता है। पहले केस में नंबर भी पॉजिटिव सीगा और एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव सी। ऑलवेज किवें नंबर भी पॉजिटिव हो सकता नंबर भी पॉजिटिव नैगेटिव हो सकता है एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव और नैगेटिव हो सकती। नो सैकेंड एग्जाम्पल मैं किया मैग्नीट्यूड में सेम लिया हुआ है बट ये नंबर मेरे को पॉजिटिव है और मेरे को एक्सपोनेंट की है नैगेटिव है। अगर मेरे को ये चीज़ आ जाएगी तो आप कितना सॉल्व करांगे। सो लेट्स सी। सो अपने को बी पार्ट है इस तरीके हम लिख लिया डेट इज 2 दी पावर माइनस 1 0 0 1 0 1। नो नंबर मेरे को की है पॉजिटिव है ठीक है। सो एस की वैल्यू मेरे को की आ जाएगी एस की वैल्यू की आएगी मेरे को 0 आएगी क्योंकि नंबर मेरे को की है पॉजिटिव है। नाउ एक्सपोनेंट की सी मेरे को 1 0 0 1 0 1 कितने बिट्स हो गया 1 2 3 4 5 6। तो पिछे कितने लगा देंगे आप 2 0 लगा देंगे। क्लीयर। दैन उस नंबर जी एक्सपोनेंट है उन्होंने की करांगे आप 2's कॉम्प्लीमेंट। आप देखा है कि नैगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने लिए आप वनस कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट मैथड यूज़ करते हैं। अगर कोई नैगेटिव नंबर है तो की किया इतने मैं 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहा हाँ दैन मीनस की होएगा जो ये एक्सपोनेंट है इनू आप 2's कॉम्प्लीमेंट के नाल की करांगे कन्वर्ट करांगे। पहला आप वनस कॉम्प्लीमेंट लवांगे सारे का डेट इज 1 1 0 1 1 0 1 0 दैन वो की कर देंगे आप 1 ऐड कर देंगे। ये की हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो ये मेरे को 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये तुहाडा की बन गया एक्सपोनेंट बन गया। क्लीयर। दैट इज की हो गया 1 1 0 1 0 1 1। क्लीयर। हम देखो मैग्नीट्यूड सेम है। सो इतने आपू मैं की लिख लिया वैल्यू अपने को की जाएगी सेम रहेगी 1 0 1 1 ये कोई भी चेंज नहीं होएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड नंबर जोड़ा है मेरे को अगर तुम उन्होंने सिंगल पोजीशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो अगर डेसीमल तो पहले बाइनरी कन्वर्ट करो फिर उन्होंने नॉर्मलाइज करो फिर वो चैक करो कि साइन बिट की होनी चाहिए है फिर चैक करो कि वो एक्सपोनेंट की होनी चाहिए है। अगर सिंगल पोजीशन है तो ई डैश इज इक्वल टू ई प्लस 127 होएगा और ई की वैल्यू जो तुहाडे कोल पावर होएगी। सिमिलरली अगर ऑलरेडी अपने को नॉर्मलाइज फॉर्म है तो दैन अगेन आप चेक करांगे कि साइन बिट केड़ी है 0 है या 1 है डिपेंड करेगा नंबर पॉजिटिव है नैगेटिव है। दैन उस बिहाव के उपर अगर मेरे को एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो दैन वो आप कोई भी 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लवांगे। क्लीयर। ऑलवेज कीप इन माइंड। सो की किया अगर मेरे को पॉजिटिव है जस्ट वो की 127 की करता मैं 28 की करता ऐड करता अगर मेरे को एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और जो भी रिजल्ट आएगा वो तुहाडा की बन जाता एक्सपोनेंट बन जाता है। एंड सिमिलरली जो अपने को 0.1 है नॉर्मलाइज में फिक्स रहेगा ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होएगी। सो इनू स्टोर करने की लोड़ नहीं है इनू आप मिट कर देंगे बट जो ये वैल्यू चेंज हो सकती कोई भी होर नंबर भी हो सकता है। सो ये वाले नंबर तुहाडा की बन जाएगा मल्टीसा बन जाएगा। क्लीयर। अगर मेरे को नैगेटिव नंबर है एक्सपोनेंट है तो पहला वाला 2's कॉम्प्लीमेंट लवांगे और 2's कॉम्प्लीमेंट भी है 120 जो सॉरी 2's कॉम्प्लीमेंट लवांगे दैन वो जो भी एक्सपोनेंट 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा वो की बन जाएगा एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है। मल्टीसा पार्ट इतने सेम ही है क्योंकि मेरे का नंबर मैग्नीट्यूड की है सेम लिया हुआ है। क्लियर। नाउ ट्राई दिस प्रॉब्लम एट होम दैन वी विल डिस्कस नंबर में मैग्नीट्यूड सेम लिया दैट इज मल्टीसा सेम रहेगा बट इन दिस केस की करता मैं जो नंबर ए नैगेटिव होएगा एक्सपोनेंट मेरे को की है पॉजिटिव है एंड सैकेंड विच की है नंबर भी मेरे को नैगेटिव है और एक्सपोनेंट भी मेरे को नैगेटिव है जिदा आप प्रीवियस एग्जाम्पल की सी उस तरीके सॉल्व करना है। ठीक है। वी विल डिस्कस इन कमिंग लैक्चर कि अगर तुम सॉल्व किया है अगर आप चेक करेंगे वैदर यू आर राइट और क्लियर। सो दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है BCD नंबर। BCD नंबर स्टैंड्स फॉर अ बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑलवेज कीप इन माइंड कि अपने को यदि फुल फॉर्म आ सकती है कि BCD स्टैंड्स फॉर दैट इज अ बाइनरी coded decimal B for binary C for coded D for decimal. It is a method of representing a binary number using a binary digit.
दैट इज कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ BCD ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿਡ ਡੈਸੀਮਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿਡ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ BCD ਇਜ਼ ਅ weighted code. In weighted code, each successive digit from right to left represent a weight equal to some specific value. weighted code ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ weight ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 0 ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਐਂਡ 4 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ weight। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BCD ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ weighted ਹੀ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ weight ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ weight 0 ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਤੇ weight 1 ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ BCD ਇਜ਼ ਅ weighted weight। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ BCD ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ weighted ਕੋਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So always keep in mind BCD is a weighted code and stands for a binary coded decimal and it is used to represent a binary number using a binary digits ਹੋਏਗਾ। So 8421 ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ it is a type of a BCD code। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BCD ਕੋਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 8421 ਕੋਡ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 8421 ਕੋਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ weight। ਸੋ ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BCD ਕੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ BCD ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਆ 4 ਬਿਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈ ਆਕਟਲ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਬਿਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ BCD ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ ਆਫ ਆ 4 ਬਿਟਸ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ 1 to 9। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ BCD ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 to 9। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ 0 to 9 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1 to 9 ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆ BCD। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟ ਲੈਂਦੇ 16 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ BCD ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਅ 10 ਡਿਜਿਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 to n ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ BCD ਕੋਡ ਹੈ that stands for a binary coded decimal it is used to represent a binary numbers using a binary digits। ਜਿਹੜਾ BCD ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ weighted ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ weighted ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ weight ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ 8421 ਕੋਡ ਹੈ this is example or type of a BCD code and the most important ਜਿਹੜਾ BCD ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ that is composed of a 4 bits ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ that is ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ 1 through 9। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ BCD means each decimal digit is represented by a binary code of a 4 bits। ਸੋ ਇਹਦਾ BCD ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ binary coded decimal। ਸੋ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਨਕੋਡ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ that is known as a BCD। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ each decimal digit is represented by a binary code of a 4 bits। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ BCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ 16 ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ BCD ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ BCD ਵਿੱਚ। ਸੋ BCD ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 4 ਬਿਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 2 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 0010 3 ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ 011 4 ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ 0100 ਐਂਡ 6 ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ 0110 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਗਾ BCD ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ BCD ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿਡ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ BCD ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ BCD ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ BCD ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 0+0 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 0+1 ਕੀ ਆਏਗਾ 1+0 ਕੀ ਆਏਗਾ ਔਰ 1+1 ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਦ 2 ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਫ 4 ਬਿਟ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 9, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਬਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 9, ਦੈਨ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ BCD ਨੰਬਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ 9 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ BCD, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਲਿਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ 6 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 1 1 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਕੈਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੈਨ 6 ਇਜ਼ ਐਡਿਡ ਐਡ ਦਾ ਕੈਰੀ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 4 ਬਿਟ ਗਰੁੱਪ। ਅਗਰ ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 9 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਟੋਟਲ 10 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ BCD ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 1 to 9 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ 0 to 9 ਆਏਗਾ। 10 ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਅਗਰ BCD ਕੋਡ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਡ 0010 ਐਂਡ 0011। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BCD ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ 0 + 1, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, 1 ਆਉਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਓਕੇ 0 + 1 ਇਜ਼ 1, ਦੈਨ 1 + 1 ਇਜ਼ 1 0 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆ ਗਿਆ, 1 ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਰੀ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ 1 + 0 1, ਦੈਨ 1 + 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1, 0 + 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਹੈ तो उन्होंने आप अकॉर्डिंग टू बाइनरी एडिशन ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके आप ऐड कर लिया 4 बिट का कंबीनेशन है। ठीक है, अगर मेरे को सिंगल स्मॉल नंबर है हम जो आप ऐड किया है वो कहना कि जो मेरे को रिजल्ट आया है इफ 4 बिट सम हमने मेरे को कहना है 4 बिट का सम है इज इक्वल और लैस दैन 9 है दैन तो वैलिड BCD नंबर होएगा। दैन ये फर्दर कोई भी अपन अगे फर्दर एडिशन करने की या मॉडिफिकेशन की मैनिपुलेशन की लोड़ नहीं है। सो कितना चेक करा तुम इनू डेसिमल कन्वर्ट करोगे ये बनता मेरे को 5 दैट इज 1 2 4 4 + 1 कितना आ गया 5 5 मेरे को की है लैस दैन की हो गया 9 हो गया। सो दिस इज अ वैलिड BCD नंबर। इतने आप कर देंगे स्टॉप कर देंगे। क्लीयर यही अपने को चीज़ कह रहा है। ठीक है, देखने लगता है कि लिखने में शायद ना क्लीयर होएगा बट नाउ आई होप कि क्लीयर हो गया होगा कि BCD एडिशन किस तरीके नाल होनी है। एक एग्जांपल हो ले लीए इन दिस केस आप ऐड किया 1 + 1 इज दैट इज अ 1 0 इतने 1 0 आना सी इतने थोड़ी नंबर में मिसटेक हो गई थी दैट इज ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ 0 0 1 0 1 0 1 1। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਕ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 0 0 1। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 0 0 1 1। ਸੋ ਇਹ 4 ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 8। ठीक है, 9 नो लैस है इट्स ओके। नैक्सट जो ग्रुप है वो कितना बनता है मेरे को 3 इट इज लैस दैन मेरे को 9 है दैन मेरे को बन गया दिस इज अ वैलिड BCD एडिशंस। क्लीयर। सो की किया है इन केस ऑफ बाइनरी एडिशन बेसिकली की होएगा जो भी अपने को एडिशंस करनी है अकॉर्डिंग टू अ बाइनरी एडिशन है वो अकॉर्डिंग होएगी। उस तो बाद जो अपने को रिजल्ट्स होएगा और आप 4 का ग्रुप बना लाँगे फ्रॉम आ राइट हैंड साइड और उस ग्रुप में बाइनरी की फॉर्म है और डेसिमल इक्विवेलेंट देखांगे या बाइनरी इक्विवेलेंट भी देख सकते हो। अगर वो मेरा रिजल्ट 9 के इक्वल है या 9 तो घट है तो वो मेरे को की होएगा वो ग्रुप की होएगा वैलिड BCD होएगा। सिमिलरली अगर मेरे को ये वाला जो ग्रुप है मान लो जो 4 का ग्रुप आया है ये 9 तो ज़्यादा हो जाता है 10 11 12 13 कोई भी हो सकता है दैन की हो जाएगा वो इनवैलिड BCD नंबर हो जाएगा। तो दैन उन्होंने वैलिड बनाने की करांगे जो मेरे को ये रिजल्ट आएगा और की कर दूंगा मैं 6 ऐड कर दूंगा।
6 ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਲਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ that is add 1001 and 0100, ठीक है। सो इन दिस केस ये मेरे को की बन गया और एडिशन बन गई that is 1 1 plus 0 is 1 0 plus 0 0 0 plus 1 is 1 then 1 plus 0 is 1। सो एक ही बन गया मेरे को टोटल 13 बन गया। अगर हम डेसिमल कन्वर्ट करूँगे एक ही बनेगा मेरे को 13 बनेगा। क्लियर, दैट मीन्स की हो गया ए इनवैलिड हो गया। क्लियर, तो देन की काम दिस इज इनवैलिड नंबर बिकॉज दिस इज ग्रेटर दैन 9। देन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ this one, if 4-bit sum is greater than 9 or carry out of a group is generated it is an invalid। then ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ add 6 to the 4-bit sum। ਸੋ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਨਾਓ ਐਡ ਕਰੋ that is 1 plus 0 1 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 1 0 1 ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कैरी। then 1 plus 1 is 1 0, ठीक है। एंड 1 0 plus 0 की हो गया 0 1, ठीक है। तो नैक्सट मेरे को कैरी आई है, वो कैरी अपने को अगे मूव कर देती है। क्लियर, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰੋ, 4 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 4 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 0 ਲਗਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 4 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬਣੇਗਾ। क्लियर, एंड सिमिलरली एक ही होगा मेरे को वैलिड BCD नंबर और एक ही बनेगा मेरे को 1 बनेगा, ठीक है। ये भी लेस देन 9 है, दिस इज आल्सो लेस देन 9, सो दिस इज अ वैलिड एडिशन होगी BCD नंबर, ठीक है। तो दिस इज अ BCD एडिशन होगी। देखो ऊपर 13 है, दिस इज नॉट अ 1 3 क्योंकि ये अपने को जो रिजल्ट है दिस इज दिस 1, ये 13 सेगा बट एक ही 1 एंड 3 है। सो आई होप चन क्लीयर हो गया होगा। जो भी आप BCD एडिशनस करनी है ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਐਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈਨਰੀ ਬਿਟਸ ਦਾ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਿਡ BCD ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ 4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। और जी ऑलरेडी अपने को वैलिड है और 6 ऐड नहीं करना है। इन दिस केस अपने को ये स्टार्टिंग में इनवैलिड आ गया सी, आप 6 ऐड कर दिता, ठीक है। जी कैरी जनरेट हुई सी ये फॉरवर्ड होगी टू द नैक्सट ग्रुप वास्ते, ठीक है। सो ये अपने को 4 का ग्रुप बन गया, पिछे 1 बचा सी, अपन चाहिए 4 का ग्रुप, 3 पिछे लगाती हैं आप बिट्स लगाती हैं और जो अपन डेसिमल कन्वर्ट किया ये 3 बनता है, ये मेरे को 1 बनता है, दिस इज लेस दैन 9 हो गए दोनों ही। सो दिस इज अ वैलिड BCD एडिशन होगी और यू कैन से वैलिड BCD नंबर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਡ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਸ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਨਵਰਜਨਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਈਨਰੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 1 by 1। फिर साइन मैग्नीट्यूड मैथड देख लिया सी अपने को की होंदा है, दैन वंस टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन एंड सबट्रैक्शन डिस्कस की सी। अज आप डिस्कस किया फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रजेंटेशन है बेसिकली एक क्वेश्चन पेपर बहुत घट आता है, लेकिन फिर भी तुहानूं पता होना चाहिए है कि अगर लार्ज नंबर है स्मॉल नंबर है तो उन्होंने कंप्यूटर मैमरी किस तरीके नाल हैंडल करती है। आप देख लिया कि सिंगल पोजीशन है, ये नॉर्मलाइज किद्दां होया है, तुहानूं और भी डिटेल में जाने की लोड़ नहीं है, जस्ट वो देखना है कि नॉर्मलाइज फॉर्म का फार्मूला की, दैन ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਬਾਇਸ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਮੰਟੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ। ਫॉर दैट टाइम थैंक यू।